আদানিকে নিয়ে গতকাল লোকসভায় নীরব ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ রাজ্যসভায় তার জবাবি ভাষণে কি উঠবে আদানি প্রসঙ্গ? প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণের আগে আদানি প্রসঙ্গে কড়া তৃণমূল। আদানির বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারির দাবি করলেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। আদানিকে গ্রেফতারের দাবি তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদের। গতকাল লোকসভায় আমরা দেখলাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কড়া ভাষায় কংগ্রেসের সমালোচনা করলেন, বিরোধীদের সমালোচনা করলেন, কিন্তু একবারও আদানি প্রসঙ্গ তার মুখে শোনা গেল না। আজ রাজ্যসভায় জবাবি ভাষণে গিয়ে আদানি প্রসঙ্গে মুখ খুলবেন প্রধানমন্ত্রী, সেই অপেক্ষায় রয়েছেন সকলে। ঘড়ির কাঁটায় বেলা 11টা বাজে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সংসদের দুই অধিবেশন শুরু হয়ে যাবে এবং আজ রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন কিনা অবশ্যই সেদিকে আমাদের নজর থাকবে। তবে তার আগে তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন তিনি কিন্তু দাবি করছেন যে আদানির বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ जारी करा होक एवं ताके गिरफ्तार करा होक। हमारा तृणमूल का स्टैंड एकदम क्लियर है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का हेल्प से अदानी जिस तरीके से पूरा देश का आम आदमी का पैसा को लूटने का कोशिश किया, इसका पूरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का नज़रदारी में, निगरानी में इसका जांच होना चाहिए। और हमारा मांग है, इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि ललित मोदी, नीरव मोदी नरेंद्र मोदी से मिलने का बाद देश छोड़ के भाग गया। इसलिए हमारा डिमांड है लुकआउट नोटिस जारी किया जाए, हमारा डिमांड है उसका पासपोर्ट रोक दिया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए। और हमारा डिमांड है जो ये इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है, इसके खिलाफ ईडी का कार्रवाई, पीएमएलए का कार्रवाई शुरू किया जाए। রাহুল সিনহা বিজেপি নেতা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। রাহুল বাবু, তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন তিনি কিন্তু দাবি করছেন যে আদানিকে যেন গ্রেফতার করা হয়, লুকআউট নোটিশ জারি করা হোক এবং ইডি যেন তদন্তের কাজ শুরু করে। দেখুন, গতকাল প্রধানমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন এই ভাষণের মর্মার্থ ওরা বোঝে না। ওরা তো বোঝে শুধু টাকা পয়সা, রোজগার, টাকা লোকানো, এগুলো ছাড়া আর কিচ্ছু বোঝে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কালকের যে ভাষণ রাষ্ট্রের পক্ষে কতটা উপযোগী ভাষণ ছিল এবং ভারতবর্ষ সারা বিশ্বের মধ্যে কোন স্থানে পৌঁছেছে, এইসব কথা ওদের বোঝার কোনো কারণ নেই। কারণ ওরা যে কুপমণ্ডুক, সেই কুপমণ্ডুক অবস্থাতেই আছে। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যে কাউকে লুকআউট নোটিশ জারি করতে হবে, গ্রেপ্তার করতে হবে। কারণ ইতিমধ্যেই তিনি বিষয়টি নিয়ে কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন, আদালতে বিষয়টা বিচারাধীন। অতএব আদালত যদি লুকআউট নোটিশ জারি করে তাহলে সেটা আলাদা কথা। অতএব আমি তৃণমূলের লোকদের বলবো, এই যে দাবিগুলো প্রেস কনফারেন্স করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আপনারা এগুলোকে ব্যবহার করছেন, দরকার মতো আর আদালতে যান, দরকার মতো সুপ্রিম কোর্টে যে তার বিচার যেটা তিনি করেছেন, দাবি করেছেন, সেখানে গিয়ে ওদের এই বক্তব্যগুলো রাখুক না। কিন্তু সেখানে তো রাখতে পারবেন না, কারণ তাদের কাছে না আছে কোনো তথ্য, না আছে কোনো প্রমাণ। সেই কারণে শুধুমাত্র বাজার গরম করা, কিছু রাজনৈতিক বিবৃতি দিয়ে ময়দানে কিছুটা তারা তাদের আধিপত্য তৈরি করতে চায়। আমরা এই জাতীয় ঘৃণ্য রাজনীতির আমরা তীব্র নিন্দা করছি। ধন্যবাদ রাহুল বাবু। সংসদের উভয় কক্ষের অধিবেশন শুরু হয়েছে, সরাসরি আমরা দেখব। I have received 2 notices under Rule 267 from Dr. K. Keshav Rao and Sri Sanjay Singh. They have sought permission for suspension of the listed business. I do not find the notices in conformity with the directions already imparted. Scheme where the lady member of the household is presented free of cost a cooking top and a cylinder. Now, during the course of the pandemic, sir, when economic activity had come to a grinding halt at one stage and then it was slow, I have given my ruling. Sir, Dr. K. Keshav Rao ji, Dr. K. Keshav Rao ji, you have, one second, you have articulated very effectively
what you mean to convey, and very effectively and rationally. Having one second, having taken note of that, I have given my ruling. Please. Sufficient only one thing. Since it is not that effective as you are thinking, let the Prime Minister release it. Dr. Ashok Kumar. पूरा एक्सपंज ही कर दिया है सर। One second. बोलने का क्या फायदा था? One second. Honorable members, take your seat. Take your seat. Take. Would you take your seat now? No, would you take your seat? What do you mean by नहीं मान सकते? नहीं. What do you mean by being so judgmental? I am surprised. नहीं, I am surprised. बोलिए मुकुल जी. आप बैठिए. Let Mr. मुकुल से. हमने आपको नोटिस दिया, आपने उसे खारिज किया. आपने कहा कि मौका मिलेगा, मोशन ऑफ थैंक्स पर आप कह सकते हैं. मोशन ऑफ थैंक्स पर एलओपी ने अपनी बात कही, उसको आपने एक्सपंज कर दिया. एलओपी ने कौन सी ऐसी बात कही जो असंसदीय है? बैठिए. बोले प्रमोद जी. बैठिए. अदर्स में टेक सीट, प्लीज टेक सीट. उड़ीसा असेंबली में, कर्नाटक असेंबली में मैंने 3-4 उदाहरण देखे. जो शब्द नेता विरोधी दल ने प्रयोग किए हैं वो पूरी तरह पार्लियामेंट्री है. यहीं बैठकर मनमोहन सिंह जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया था और वो आपकी कार्रवाई में सम्मिलित हैं. आप देख लें. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप ही के आदेश का पालन हो रहा है कि भाई 267 में नहीं, जब राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा हो बोल लेना, उसमें बोल रहे हैं. तो वो भी अगर नहीं सुना जाएगा तो सर ये संसद का निर्माण जो हुआ है, इसकी जो परंपराएं हैं, आप हमेशा कहते हैं परंपराओं की रक्षा होनी चाहिए. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं उन परंपराओं की रक्षा करिए. वो जो भी शब्द निकाले गए हैं उन्हें कार्रवाई का अंग बना रहने दें. ये मेरा नम्र निवेदन. Honorable members, I examine the proceedings in the light of rules framed by the House, and Rule 261 casts an obligation on me to make such sweeping observations that everything has been removed is not appropriate. I expect the honorable members first to go through what has been expunged. I have one second. Sir, please. I would urge you again that we are in a house where some decorum has to be maintained. I have taken my call. Dr. Ashok Kumar Mittal. One second. Please take your seat, Honorable LOP. सर, One second. जो चीज रूल्स के तहत, प्रोसीजर के तहत यहाँ पर बोली जाती है, मैं नहीं समझा कि मेरे स्पीच में कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री और किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं था. लेकिन फिर भी उसमें आप चुन के चंद शब्दों का गलत अर्थ निकाले, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आपको उसके बारे में कुछ अगर संशय है तो वो अलग ढंग से पूछ सकते थे. लेकिन आपने मेरे 6 जगह जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे, मौनी बाबा और दूसरे, I would appreciate. What I have expunged should not be used. तो What I have expunged should not be used. अरे नहीं साहब, इस सदन में बोले सो मैं बोल रहा हूँ. नरसिंह राव जी को वाजपेयी साहब ने खुद एक शब्द कहा था, अभी भी वो अब किताब में है, आप देखिए. और मेरे को जो जब यहाँ बात हमारे चीफ व्हिप रखते हैं हमारे पार्टी की ओर से और सदन की ओर से रखते हैं, तो आप उनको बार बार टोकते रहते हो, ये ठीक नहीं है, आप बैठिए, आप पढ़िए. अब बहुत अच्छा पढ़ के आए साहब, वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अच्छा जानते हैं, हिंदी जानते हैं,
कन्नड़ा जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं और कौन सी भाषाएं होंगी, तो इसीलिए और संसदीय भाषा जानते हैं, इसके बावजूद भी आप उनको टोकते ही रहते हो। जो मेरे डिफेंस में आता हर राइट्स को टोकना, ये ठीक नहीं है। कृपया आप और एक बार उसको देखिए। अल्टीमेट डिफेंडर ऑफ द एलओपी इज द चेयरमैन। नहीं, वो नहीं हो रहा ना सर, वो नहीं हो रहा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, I have taken 0 hour, not present. Shri Binoy Vishwam. Thank you, sir. With a saddened heart and with lot of protest, I stand here. My concern and our concern, I should call it, is regarding the miseries of the Manrega workers. তুরস্ক সিরিয়ায় ভূমিকম্পে মৃত্যু ছড়ালো 15,000, আহত 40,000-এরও বেশি। ধ্বংসপুরীতে আটকে রয়েছেন 10 জন ভারতীয়। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া তুরস্কের ভয়ানক ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি। भूकंप प्रभावित इलाकों के अंदर सबसे पहली चुनौती और सबसे पहली प्राथमिकता होता है राहत सामग्री और बचाव टीमों को पहुंचाना। लेकिन ऐसे में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर उन इमारतों से निकले हुए मलबे के कारण जो कि सड़कों तक फैल जाता है। और इस समय यहां पर वही कोशिश हो रही है, इन बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी के जरिए कोशिश हो रही है कि इस मकान से जो मलबा सड़क पर आया है उसे हटाया जा सके, ताकि यहां से जो दस्ते मदद के लिए आगे जा रहे हैं वो आगे तक मदद पहुंचा सके, क्योंकि आगे कई इमारतें टूटी हुई हैं, वहां भी मलबा बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है। और इस मलबे को हटाने की जो तमाम कवायद है इस पूरे इलाके के अंदर चल रही है, क्योंकि लगातार आसपास पूरे इलाके के अंदर इसी तरीके से मलबे में तब्दील हुए मकान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से, ये एक 2 मंजिला मकान था जो इस समय पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है, ये भरभरा कर नीचे आ चुका है। और ये सब कुछ कहर है उस भूकंप का जो 6 फरवरी की सुबह 4:17 पर आया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आफ्टर शॉक्स आए, जिस तरीके से लगातार झटके आते रहे, उसने इस तरीके से कई इमारतों को झकझोर कर रख दिया, उन्हें चकनाचूर कर दिया। और इस तरीके से यहाँ पर कई बड़े बड़े अपार्टमेंट, कई बड़ी बड़ी इमारतें और छोटे घर भी आप देखिए कि उस तरीके से वहाँ सामने भी जो है वो घर इस तरीके से गिरा हुआ है, जिसकी छत पूरी तरीके से नीचे ढह गई है। और आप देखें कि अपने घर को छोड़कर भी, एक घर जहां है उसके बाद भी घर से बाहर टेंट में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। ये घर हालांकि सुरक्षित है, लेकिन यहां पर लोग टेंट के अंदर रहने को मजबूर हैं। और जैसे ही राहत सामग्री आती है यहां पर लोग राहत सामग्री लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो राहत सामग्री लोगों को दे रहे हैं और लोग टेंटों में रह रहे हैं, छोटे छोटे अपने बच्चों के साथ में रह रहे हैं। और जो घर सुरक्षित हैं वहां पर भी लोग फिलहाल घरों में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी समस्या इसी चीज को लेकर है कि यहां पर झटके अभी भी आते हैं, लगातार आ रहे हैं। और वो आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला है वो लोगों के अंदर दहशत जो है वो पैदा कर रहा है। और यही वजह है कि यहां पर घरों के बाहर भी इस तरीके से जो टेंट हैं वो बनाकर लोग रह रहे हैं। और फिलहाल जिंदगियों को समेटने की, उन्हें बचाने की जो कोशिश है, जो जद्दोजहद है, वो तुर्की के इस भूकंप प्रभावित इलाके के अंदर लगातार हर कदम पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, नूरदागी, तुर्की, एबीपी न्यूज।